بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری سب سے بڑی سکون ہیں، اور ہر موقع پہ جو اس ملک کے حق میں کوئی بھی موقع آتا ہے تو میں ایک آواز دوں تو آپ لوگ لبیک کہتے ہو اور میرا ساتھ دیتے ہو، میرا مان ہو، میری آن ہو، میری شان ہو۔ آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہم چلتے ہیں۔ اس حلقے کو آپ ساتھ نہ ہو تو میں اکیلی نہیں چلا سکتی۔ اور تمام عالم اسلام میں نہ صرف نیشنل لیول پر بلکہ انٹرنیشنل لیول پر ہمارا پرچم بلند ہوا۔ تو یہ سب کاوشیں ہمارے محترم نواز شریف صاحب کی کاوش تھی، جن کی بھرپور کوششوں سے آج الحمدللہ ہم اس ترقی کے دہانے پر کھڑے ہیں، جس کا منہ بولتا ثبوت ہم نے جو ہماری آرمی نے 9 مئی کے حوالے سے انڈیا کو تابڑ توڑ حملوں کی صورت میں عطا فرمایا۔ ہم ایک بھرپور قوت کے طور پر ابھرے اور ہم نے انڈیا کو شکست دے کر الحمدللہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر اپنا پرچم جو ہے وہ بلند کیا۔ اور یہاں میں اپنے MLA عطا طارق بھائی کے ان کی کاوشوں کی بھی بڑی مشہور ہوں کہ انہوں نے انفارمیشن کے دور پر پاکستان کو جو ہے وہ پوری دنیا میں جو جس طرح انہوں نے نمائندگی کی وہ قابل تحسین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم جی، میں عطا صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارے پاس ایک عطاولہ نہیں ہے، ہمارے پاس 2 عطاولہ ہیں، ایک ماں کی شکل میں اور ایک بیٹے کی شکل میں۔ میں اس چیز میں بہت فخر کرتی ہوں کہ 28 مئی ہم لوگوں کو شاذ و نادر بتاتا تھا، ہماری قائد کی طرف سے شاذ و نادر کال آتی تھی، مگر اب ہر ایونٹ پہ ہر پروگرام میں سائدہ فاروق طارق صاحبہ جو عطاولہ طارق کی والدہ ہیں، جن کو میں کہوں گی کہ 2 طارق ہیں ہمارے پاس، انہوں نے ہمیں دعوت دی، ہم لوگ آئے، ہمیں بہت اچھا لگا اور پتہ چلا کہ 28 مئی کا اصل کیا پوائنٹ ہے اور کیا واقعہ ہے۔ پوری دنیا میں انشاءاللہ پاکستان دکھائے گی کہ پاکستان کتنی بڑی عالمی طاقت ہے۔ پاکستان، پاکستان، عطاولہ طارق، سائدہ طارق، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آنے والے سب مہمانوں کو دیکھ کیا جا کر ان سے شکریہ، اور سب سے زیادہ ہم اپنی محترم والدہ سائدہ فاروق طارق صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیں ایسے چھوٹے ایونٹس رکھ کے ہم سب کو اکٹھا کرتی ہیں، اور ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے وطن کے لیے ایسے ایونٹس پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور پاکستان کے لیے نواز شریف صاحب نے ہی بہت زیادہ دباؤ ہونے کے باوجود انہوں نے 5 ایٹمی دھماکے کیے، جس کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے ایٹمی پاور بن گیا، اور آج تک ہمارے جو ہے دشمن ہے اسی وجہ سے خوف زدہ ہے کہ ہم نے صرف ایک بم چلانا ہے اور اس کی پوری دھرتی میں ختم ہو جانا ہے۔ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان زندہ باد۔ اور ہماری جو اپنی ٹیم ہے جس کے ہمارے لیڈر ہیں، اور ہمیں ان میں اپنے سے زیادہ بہت زیادہ فخر ہے کہ ہم عطاولہ طارق صاحب کی ٹیم کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے ملک کے لیے اس طرح وہ کام کرتے رہے۔ عطا بھائی، آنٹی سائدہ، پاکستان، پاک آرمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم
इनको शुरू करती हूँ और इनको मैं अब हमारी जो माँ जी है सबको इकट्ठा करके चल रही है। बहुत इनका शुक्रिया कि अपने हर टाइम हमें याद रखती है और हमारे साथ है। हम भी इंशाअल्लाह ताला मालिक के साथ पाकिस्तान पाकिस्तान का मतलब क्या? मियां मौलाना नवाज शरीफ मोहतरमा मरियम नवाज अता करे भाई सादत सभा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि हमारे ये 28 मई यौम तकबीर हमारे हिस्से में आज का दिन आया। मैं एटमी पावर को लेके दिल से हाजिर तस्वीर पेश करती हूँ जिन्होंने इतना प्यारा बेटा दुनिया में पैदा किया और वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन लेके आए और उन्होंने हमारे तक रसाई पैदा की और उन्होंने आर्मी के साथ मिलके अपने मशवरों के साथ ऐसे इंडिया को नस्तोनबूद और उनको दिखाया 5 मिनट में कि कैसे हम उनके लिए दुनिया में सारोबार कर आते हैं और वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हमारी आवाम उनके साथ खड़ी है, हमारे बेटे भाई हमारे बुजुर्ग लोग हम खुद उनके साथ खड़े हैं। हम उनके ड्रोन जितने भी इधर आए हैं हम अपनी बंदूक की गोलियों से उनको गिरा सकते हैं। वो हमें क्या कुछ कर सकते, कुछ भी नहीं हमारा कर सकते। हमारे लिए तो हमारा भाई साहब मैं आज तस्वीर पेश करती हूँ जिन्होंने मिलकर बहुत भरपूर इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया और हम उनके हिस्से में आए और उनकी वादा के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम इनके हिस्से में आए। बाकी पूरी टीम को हमारा घाटे माता और कशकोर हमेशा हमारी बहनों का के साथ NA-127 आज खड़ा है, कल खड़ा है और खड़ा रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। आज सब बहनें हम लोग इधर इकट्ठे हुए हैं। हर साल ये दिन हम लोग मनाते हैं। मियां नवाज शरीफ उनके ये जो मजबूत फैसला था इसकी वजह से आज पूरी कौम इकट्ठी है। सन 1974 में जब इंडिया ने एटमी धमाका किया तो हमारी क़यादत ने ये फैसला किया कि हमें भी एटमी पावर बनना है और फिर हमारे साइंसदान जो अब्दुल कदीर खान और उनकी टीम की दिन रात की मेहनत से ये हम लोगों को ये मुकाम हासिल हुआ और अल्लाह के फजल से जब इंडिया के मुकाबले में हमारी क़यादत ने उन्होंने 5 धमाके किए, उसके जवाब में नवाज शरीफ ने 6 धमाके किए। 5 28 मई को किए और 6 30 मई को किया। अल्लाह के फजल करम से और ये सारा मुल्क जो है उनकी दुआओं से अल्लाह मियां उन्हें सेहत और सलामती अता करे। हमारे जो ये साइंटिस्ट थे अब्दुल कदीर खान उनका कहना था कि क़यामत तक पाकिस्तान की कौम मियां नवाज शरीफ पे सलाम भेजती रहेगी उनके इस जुर्रतमंदाना फैसले पे। तो आज आपने देख लिया जब धमाके किए तो बड़ी इक़्तिसादी पाबंदियां लगी, दुनिया ने बड़ा प्रेशर भी पाकिस्तान को लाए, लेकिन पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की क़यादत, पाकिस्तान की हुकूमत ये सब इकट्ठे उन्होंने सारी मुश्किलात का मुकाबला किया और आज अल्लाह के फजल करम से हम एक मजबूत दिफा रखते हैं और दुनिया अब जो इज्जत अफजाई कर रही है पाकिस्तान की, हमारी क़यादत जिधर जिधर भी जा रही है हमें सब कुछ नजर आता है। और फिर जब अभी पिछले दिनों में ये जंग हुई है तो इसमें जो हमारे MN ने वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ साहिब ये गॉड गिफ्ट हैं, हमें जान लिया है कि वो गॉड गिफ्ट हैं। जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को डिफेंड किया, जिस तरह उन्होंने दुनिया के पूरे मीडिया को जवाब दिए
हिम्मत और ऐसे फ्रेश थे कि मतलब नजर आता था, और हम लोगों में भी हम लोग अच्छा महसूस करते थे, हम लोग भी अपने आप में बड़ा जज्बा महसूस करते थे कि हम उनके साथ खड़े हैं। और हमारे एमएलए साहब हैं वो, अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली लंबी उम्र अता करे और मजीद इज्जतों से नवाजे। और अतार साहब की वालदा मोहतरमा साहिदा तारड़ साहिबा, वो जिस जान पहचानी से इस हल्के को चला रही है, हमें सब नजर आता है। जो वो अपने दिल में दर्द रखती हैं, लोगों के मसाइल जिस तरह हल करती हैं, अल्लाह ताला उन्हें अजर अजीम अता करे। अल्लाह ताला उनको आखिरत में ये सब कुछ जो है अल्लाह ताला उन्हें जन्नत का फिरदौस और दुनिया की आखिरत की सारी नेमतों से नवाजे। मेरे दिल से दुआ निकलती है उनके लिए, मैं उनका महसूस करती हूँ जो वो आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है, और आप लोगों को भी इसका अंदाजा है। साहिदा अबू साहिबा, काबिल एहतराम राबिया अफजल साहिबा, मेरी तमाम काउंसलर्स, मेरी तमाम बहनें जो अदादारान हैं, मेरी वो जो नई आने वाली बहनें, इन सबको खुशामदीद कहती हूँ। और मोहतरमा साहिदा फरूख साहिबा की बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने हमें आपके सामने आज बोलने का मौका दिया। ये प्रोग्राम हर कोई मुनक्किद नहीं करवा सकता। ये जो ज़ौक़ वाले लोग होते हैं, ये जो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, ये वो लोग प्रोग्राम करते हैं। तो मेरी बहनों, मैं आज के लिए अपनी तमाम बहनों की स्पीच सुनकर बहुत खुश हुई हूँ, और सिर्फ इतना कहूँगी, क्या मुझे शेर भी याद आया था, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा भर पैदा। अता तारड़ साहब के लिए दो अल्फाज ये कहूंगी, एक जान तो हमारी पाक आर्मी ने लड़ी, मेरी बहनों, एक जंग पाक आर्मी जिन्हें हमारी हुकूमत इस चीज की इजाजत देती है कि जाएं जी आप लोग मुल्क की हिफाजत करें, लेकिन एक जंग हमारे भाई अता तारड़ ने जो मीडिया पे लड़ी, उसके लिए मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पैगाम देना चाहती हूँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ऐसे बेटों को अपने और सीने से लगाए, जिन्होंने इस मुल्क से बेलौस प्यार किया, जिन्होंने अपने मुल्क से बेलौस प्यार किया। हमें इस मुल्क की हर मट्टी से प्यार है, बाखुदा हमें कुछ नहीं चाहिए, इस मुल्क की सलामती चाहिए, इस मुल्क की सलामती जिसमें हम लोग उन पुरसों पे इस विषय को लेकर बैठे हुए हैं, जिन्होंने बेशुमार कुर्बानियां देकर इस पाकिस्तान को बनाया। कायदे आज़म साहब अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमारे साथ यहाँ आ गए। तो मेरी बहनों, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिन्होंने यौमे तकबीर का हक अदा किया, अपनी जान हथेली पे रखकर उन्होंने वो धमाके इसलिए किए कि दुश्मन ये ना सोचे कि हम बड़े आराम से सो रहे हैं। मेरी बहनों, एक जवाब यौमे तकबीर था, एक जवाब हमारी पाक आर्मी ने दिया, जिसकी हिफाजत में आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर आज जंग बंद ना होती तो शायद हम आज इकट्ठे ना होते। तो मेरी बहनों, तमाम मेरी माएँ बहनें, इस मुल्क की पाक आर्मी के लिए, इनकी मदद करने वालों के लिए अपनी 5 वक्त की नमाज में दुआओं में याद रखा करें। इन बच्चों की हिफाजत की दुआएं किया करें जो बॉर्डर पे सरहदों पे खड़े। तो मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सलूट मारती हूँ और उनकी सेहत के लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक हमारे कायद को हमेशा हमारे सर पर सलामत रखना और अता तारड़ की हिफाजत फरमाना। अल्लाह तूने उसे हमारे हल्के में भेजा है, मेरे मालिक मौला, ये तेरी रज़ा से फतह कामरानी होती है।
अल्लाह इस बच्चे को, ये नेक माँ बाप का बच्चा है, अल्लाह इसको इज्जत दिए है तो इज्जत दे ही रखी। पाक आमीन, पाक आमीन। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, मरियम नवाज,